online class from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our bio class for class 8 and 9, and we will continue chapter number 8, nutrition, and our lecture number is 9. Our topic is functions of small intestine. Small intestine is made up of three parts: the duodenum, about 25 centimeter, 10 inches long, C-shaped first part; jejunum, the coiled mid-section; the ileum, the final section that leads into the large intestine. Duodenum receives chyme from the stomach, and it is a part of the alimentary canal where most of the digestive process occurs. Ducts that empty into the duodenum deliver pancreatic juice and bile from the pancreas and liver respectively. स्मॉल इंटेस्टाइन्स के तीन हिस्से आपको बताए गए हैं। एक है ड्यूडिनम, जो कि एक सी शेप तकरीबन 10 इंचेस लॉन्ग होती है। दूसरा है जेजुनियम, लच्छेदार होता है, और आखिरी हिस्सा इलियम कहलाता है। ये बड़ी आंत के साथ, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके साथ जुड़ी हुई होती है। काइम स्टमक से ड्यूडिनम में दाखिल हो जाता है। ये एक ऐसा हिस्सा है जहाँ ग़िज़ा के जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेशतर अमल हो चुका होता है। इसमें लिवर और पैनक्रिएट से दाखिल होने वाली जो जूसेस होते हैं, जो गुदूद हैं जूसेस, यानी कि पैनक्रिएटिक जूस और लिवर के जो जूस होते हैं यहाँ से में दाखिल हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाइल। Bile salts have detergent action on particles of dietary fat, which causes fat globules to break down or emulsify into minute and microscopic droplets. बाइल के अंदर जो बाइल सॉल्ट्स के ज़ेरे असर जो ग़िज़ा में शामिल होकर इसको तोड़ के एक शीरानुमा कतरों में तब्दील कर देती है। Pancreatic juice is a liquid secreted by a pancreas which contain a variety of enzymes including proteins like trypsinogen, pancreatic lipase, and amylase, which digest protein, lipids, and carbohydrates respectively. पैनक्रिएट से जो निकलने वाले पैनक्रिएटिक जूस जो होते हैं उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम जैसे ट्रिप्सोजन, प्रोटीज और ये पैनक्रिएटिक लिपेज, एमाइलेज शामिल होते हैं, जो कि प्रोटीन, चिकना और फैट्स और ये कार्बोहाइड्रेट्स को हज़म करते हैं। इसके बाद है पैनक्रिएटिक इंटेस्टाइनल जूस। Intestinal juice produced from the small intestine contain enzymes, and pancreatic juice break down all 4 groups of molecules found in the food: polysaccharide, protein, fat, and nucleic acid into their component molecules. इंटेस्टाइनल जूस में क्या होता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन और पैनक्रिएटिक जूस से जो शामिल होता है ग़िज़ा में, उसमें मुख्तलिफ़ एंजाइम की मदद से ग़िज़ा को प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, फैट और न्यूक्लिक एसिड को इसमें हज़म कर लिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल में अंदरूनी जानिब जो है वो आप देख रहे होंगे, बेशुमार आपको फिगर में दिखाएंगे, बेशुमार जो है वो फिगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कवर्ड विद अ मिलियन ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं स्टमक के अंदर, हम इसको विली कहते हैं। Each villus is connected and richly supplied with the blood capillaries and lymphatic vessels that is lacteal. The wall of villus are made up of only one layer of cell in thickness. The villi are the vehicle through which nutrients can be absorbed into the body. They increase the surface area over which absorption and digestion occur. These specialized cells have absorbed material cross the intestinal lining into the bloodstream. Bloodstream carries simple sugar, amino acid, and nucleosides to the liver and hepatic portal vein for storage or further chemical changes.
From liver, the required food molecules go towards the heart and hepatic vein. The lymphatic system, a network of vessels that carry white blood cells and a fluid called lymph throughout the body, absorb glycerol, fatty acids and vitamins. जो फिंगर लाइट प्रोजेक्शन जो है विली है, ये हमारे खून की कैपिलरीज में इसमें एक वसी इनका नेटवर्क होता है और हर विली की दीवार में एक सेल की लेयर मुश्तमिल होती है। विली ही दरअसल वो एक ज़रिया है जिसकी मदद से हम ग़िज़ा को जिस्म में जब्स कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन दोनों अमल इसमें होते हैं। इसकी जो मखसूस जो सेल्स होते हैं वो आंतों में से ग़िज़ा को जब्स करके खून को फराहम करते हैं। खून के ज़रिए सादा यानी सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड और न्यूक्लियोसाइड्स को हेपेटिक पोर्टल वेन की मदद से जिगर को फराहम किया जाता है, जहाँ या तो उन्हें ज़ख़ीरा कर दिया जाता है या फिर उनके उनमें मज़ीद तब्दीली लाई जाती है। जिगर से ग़िज़ा के इन मॉलिक्यूल्स को हेपेटिक वेन्स के ज़रिए दिल को मुहैया किया जाता है। जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इनमें नालियों के नेटवर्क होता है जो हमारे सफ़ेद जो वाइट सेल्स होते हैं और लिम्स यानी कि जो होता है एक लिक्विड जो फ्लूइड होता है वो हमारे जिस्म को फराहम करता है। नेज़ ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स और वाइटामिन्स को भी जब्स करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको फिगर में विली का शेप दिखाया हुआ है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इसमें स्मॉल ब्लड कैपिलरीज आपको नज़र आ रही होगी और लेट्रियल भी है जो कि लिम्फेटिक से निकल रहा है। ये हमारे अंदर का है, विली का दिखाया हुआ है किस तरीके से वो ब्लड को लीवर तक पहुँचाता है। यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है मैक्रो मॉलिक्यूल समरी का। यहाँ पे पॉलीमर्स जो है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो मोनोमर्स में चेंज होते हैं ग्लूकोज और अदर सिंपल शुगर में, और इनका रोल क्या होता है कि वो ब्रोकन कर लेते हैं एनर्जी को, यानी कि और क्या बनाते हैं, ATP बना देते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स पॉलीमर्स हैं और मोनोमर्स में अमाइनो एसिड्स हैं, और इनका क्या रोल होता है कि ये अपने एंजाइम्स को इस्तेमाल करते हैं और बॉडी को प्रोटीन्स की फराहमी करते हैं। इसके बाद पॉलीमर्स में आपको लिपिड्स बताए हुए हैं, वैक्सीन्स बताए हुए हैं और स्टेरॉइड्स बताए हुए हैं, ऑयल्स हैं, ये सब पॉलीमर्स हैं। मोनोमर्स में फैटी एसिड्स चेन और ग्लाइकोसिन है, और ये हमारे किस लिए इस्तेमाल होता है, सेलुलर एनर्जी हमें देती है और स्टोरेज यूज टू मेक सेल मेम्ब्रेन स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। ये इसमें आपको पॉलीमर्स और मोनोमर्स इन दोनों का रोल बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन एंड इट्स फंक्शन। अब जो है ग़िज़ा जो है हमारे बिल्कुल लास्ट स्टेप पे पहुंच गई, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आखिरी स्टेप है। फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन food that has not been digested and some water travels to the large intestine through a muscular ring that prevents food from returning to the small intestine. By the time food reaches the large intestine, the work of absorbing nutrients is nearly finished. The large intestine's main function is to remove water from the undigested water and form solid waste that can be ingested. The large intestine is made up of 3 parts. Large intestine यानी जब ग़िज़ा जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है, तो ये एक इसमें हज़म शुदा ग़िज़ा भी शामिल होती है और वो दाखिल हो जाती है, और इसमें एक वॉल होता है, वॉल के ज़रिए ये जो वॉल होता है इसके ज़रिए ग़िज़ा जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, और ये वॉल वापस रिटर्न होने से भी रोकता है।
जो लार्ज इंटेस्टाइन में ग़िज़ा का जो एब्जॉर्प्शन का अमल जो है तकरीबन मुकम्मल हो चुका होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो बुनियादी काम क्या होता है कि जो ग़िज़ा गैर हज़म होती है उसमें से पानी को जब्स कर लिया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट की शक्ल में उसको तब्दील कर लिया जाता है और उसको जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट से बना हुआ होता है। एक है आपका सीकम इज अ पाउच एट द बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन दैट जॉइन द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। द ट्रांजिशन एरिया एक्सपेंड इन डायमीटर अलाउइंग फूड टू ट्रैवल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज। अपेंडिक्स अ स्मॉल होलो एंड फिगर लाइक पाउच हैंग्स एट द एंड ऑफ द सीकम। इट्स नो लॉन्गर अपीयर टू बी यूजफुल टू द डाइजेस्टिव प्रोसेस। यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है लार्ज इंटेस्टाइन की, और लार्ज इंटेस्टाइन आप देखें शुरू हो रहा है यहाँ से, ये पाउच है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पूरा ट्रैक है, और ये कहाँ पे ख़त्म होगा, एनस पर। ठीक है, यहाँ से आप देखिएगा फिगर में लार्ज जो पहला पार्ट है उसका नाम है सीकम। इसमें ये तकरीबन एक थैलीनुमा हिस्सा होता है। यहाँ पर जो है स्मॉल आंत से जो खुराक इसमें दाखिल होती है उसमें इसके साथ आपको अपेंडिक्स भी नज़र आता है, लेकिन इसका कोई किरदार नहीं होता डाइजेशन के अंदर। सीकम से मिला हुआ बड़ी आंत का दूसरा हिस्सा, अच्छा आप दूसरे से भी आ गए, आप कोलोन पढ़ते हैं। सेकेंड हिस्सा है हमारा द कोलोन एक्सटेंड फ्रॉम द सीकम अप द राइट साइड of the abdomen across the upper abdomen and then down the left side of the abdomen, finally connecting to the rectum. The colon has 3 parts: ascending colon, transverse colon which absorb fluid, salts, and descending colon which holds the resulting waste feces. Feces mainly consist of undigested material, large number of bacteria, swelled of gastrointestinal cells, bile, pigment, and water. Bacteria in the colon help to digest the remaining food products. Third is the rectum is where feces are stored until they leave the digestive system through the anus as a bowel movement. ठीक है, जितने भी नाम है उसको आप फिगर में फॉलो कीजिएगा और समझिएगा। सीकम के बाद दूसरा हिस्सा कोलोन है, और पेट के बाएं जानिब ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है, और फिर ये नीचे की तरफ जाता है। निचले से बाएं से दाएं जानिब जो है वो रेक्टम से जा मिलता है। ठीक है, इसी तरह कोलोन को 3 मुख्तलिफ हिस्सों में हम तकसीम भी कर सकते हैं, असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन, और यहाँ पर ये सॉल्ट्स वगैरह को जब्स करते हैं। इसके बाद जो डिसेंडिंग कोलोन है, इसमें जो डिसेंडिंग कोलोन है इसमें जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट जमा हो जाता है। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये पानी सब कुछ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और बैक्टीरिया या इसमें बच जाने वाली ग़िज़ा में से चंद अज़ा को हज़म करने में मदद देता है। कोलोन में जो क्या होता है, बैक्टीरिया जो होते हैं उससे बच जाने वाली ग़िज़ा में से चंद अज़ा को हज़म करते हैं। बड़ी आंत के आखिरी हिस्से रेक्टम में, ये सारा कोलोन के बाद क्या होगा, रेक्टम स्टार्ट हो गया बिल्कुल। इस हिस्से में रेक्टम में क्या होता है, गैर जो हमारी अनडाइजेस्टेड फूड है वो इसमें जमा हो जाता है, और फिर आंत के ज़रिए जो है हमारे जिस्म से बाहर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल हो जाता है। इसके अंदर जो ग्लैंड यूज होते हैं, लीवर और पैनक्रिएटिक, इसमें लीवर की भी खासी अहमियत है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीवर एंड इट्स फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीवर एंड इट्स फंक्शन। द लीवर produces bile which helps the body to digest and absorb fat. Bile is stored in the gallbladder until it is needed. Bile travels through special channel bile duct directly into the small intestine. फैट्स को हजम और जब्स करने के लिए बाइल्स कहाँ पर होता है, ये लीवर के अंदर, जो कि प्रोड्यूस करता है बाइल। ठीक है, इसे हम गॉल ब्लैडर में जमा करते हैं, और वक्त ज़रूरत इसको हम खारिज भी कर देते हैं, निकाल भी देते हैं। बाइल एक बाइल डक्ट के ज़रिए छोटी आंत में इसको खारिज कर दिया जाता है बाइल को।
ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है स्टमक के साथ लीवर अटैच है बिल्कुल, और इसमें आपको गॉल ब्लैडर भी दिखाया हुआ है जिसको हम पित्ता कहते हैं, ग्रीन कलर का है। ठीक है, ये लीवर क्या है? जिगर। ठीक है, आपको पता है जिगर, लीवर जिगर को कहते हैं। It also makes a substance that neutralizes the stomach acid. The liver also play a major role in handling and processing of nutrients which are carried to the liver in the blood from the small intestine. The liver is metabolically active organ responsible for many vital life functions. लिवर क्या है? ये एक और मादा भी खारिज करता है जो हमारे स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज रखता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन से खून के जरिए मिलने वाले जो ग़िज़ाई अज्जा होते हैं वो भी जिगर मुहैया करता है। ये इन्हें ना सिर्फ ज़ख़ीरा करता है बल्कि एक दूसरे में तब्दील भी कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है डिसऑर्डर ऑफ गट्स, पेट की जो बीमारी है उसके बारे में है। नंबर 1 है डायरिया। इट इज़ अ कंडीशन in which a sufferer has a frequent watery, loose bowel movements during the fast peristaltic movement. This condition may be accompanied by painful abdominal cramps, nausea, fever, and generalized weakness. It occurs when required water is not absorbed in the blood from colon. The main cause of diarrhea includes lack of adequate safe water, virus, bacteria. In malnourished individual, diarrhea leads to severe dehydration and can be life-threatening. To control diarrhea, consume adequate amount of water to replace loss and preferable mixed with essential salt and some amount of nutrients. पेट की बीमारी में पहले आपको दिया हुआ है डायरिया। इसमें जो मरीज़ है वो मरीज़ को आंतों की तेज़ी की हरकत की वजह से बार बार हाजत की ज़रूरत होती है। इसमें पेट में दर्द, मतली, बुखार और कमज़ोरी आ जाती है। इस बीमारी में आंतों से खून में पानी के जब्स का अमल की वजह से कमी हो जाती है। इसकी अहम वजूहात में आलूदा पानी या वायरस या बैक्टीरिया होते हैं, और इसलिए ज़िंदगी के लिए ख़तरा का बायस भी हो सकता है। इसलिए इस पर काबू पाने के लिए ज़रूरी नमकियात और दीगर अज्जा के हामिल पानी का कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। सेकेंड है हमारे पास कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इज़ अ कंडीशन वेयर अ पर्सन एक्सपीरियंस हार्ड फेसेस दैट आर डिफिकल्ट टू एलिमिनेट। द मेन कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन आर हार्डन ऑफ द फेसेस ड्यू टू द एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन water through colon, insufficient intake of dietary fiber, dehydration and use of medicines, those containing iron, calcium and aluminum, and tumor in rectum or anus. The treatment of constipation are change in diet and exercise habits, use of laxative, example paraffin may be in some cases to prevent constipation is easier than treatment. कंस्टिपेशन का मतलब है कब्ज़ हो जाना। इसमें भी ये भी खून में ग़िज़ा में ज़रूरत से ज़्यादा पानी के जब्स की वजह से हो जाता है। ग़िज़ाई रेशे का कम से कम इस्तेमाल या जिसमें पानी की कमी की वजह से, और कुछ अद्वियात जिसमें फौलाद, कैल्शियम और एल्युमिनियम वाले एलिमेंट्स शामिल हों उनकी वजह से भी ये हो जाता है। और इसको दूर करने के लिए ग़िज़ा में तब्दीली करनी चाहिए और जिस्मानी मशक्क़त करनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए, और जो अद्वियात हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे कब्ज़ जो है इसके इलाज से ज़्यादा आसान होता है। कब्ज़ से तहफ़्फ़ुज़ इसके इलाज से ज़्यादा आसान होता है। थर्ड आपकी डिजीज़ है अल्सर, पेप्टिक अल्सर। इट इज़ अ सोर इन गट, ब्लीडिंग एंड कैन बी डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज अल्सर इन स्टमक इज कॉल्ड गैस्ट्रिक अल्सर। Ulcer of duodenum is called duodenal ulcer. Ulcer of esophagus is called esophagus ulcer, and breakdown of tissues by acidic gastric juice. It can be due to long-term use of anti-inflammatory medicines. Example: aspirin, smoking, drinking coffee, colas, and eating spicy food. Few of the signs are as under
abdominal burning after meals and abdominal pain, rash of salivia after an episode of regurgitation, or the loss of appetite and weight. Ulcer can be treated with medicine containing alkaline composition and avoiding spicy food. अब थर्ड जो है आपका डिसऑर्डर, जो डिजीज़ दी हुई है वो आपको अल्सर की दी हुई है, और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी हिस्से में बनने वाले जख्म को हम अल्सर कहते हैं। अगर वो मैदे में है तो मैदे का अल्सर, अगर वो ड्यूडिनम में है तो ड्यूडिनम का, यूसोफेगस में है तो यूसोफेगस का। इसकी आम वजूहात में तवील अरसे तक जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी अद्वियात, मतलब स्प्रीन का इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, कॉफ़ी, मसालेदार खानों की कसरत की वजह से हो जाती है। और इसकी अलामत में खाने के बाद पेट में सोजे, यानी कि उल्टी, मतली और भूख की कमी और वज़न का गिर जाना शामिल है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। आप हमारे लेक्चर को बार बार पढ़ें, समझें। आप हमारे तमाम लेक्चर्स को YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं, और हमारे चैनल DHS PSS एंड NCPSS पर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।